Hello students, 10 questions of exercise 6.3 we have done. Today we have to start from question number 11 and today we are going to complete this exercise. Question number 11 is in the figure 6.40. E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. E is a point on the one of the side of a triangle ABC which is isosceles triangle. Isosceles triangle कौन सा होता है जिसकी whose two sides are equal. AB is equal to AC given है. AD is perpendicular on BC. EF is perpendicular to AC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. ठीक है, तो given to prove we will write and solve. देखो कैसे करना है. AB is equal to AC given है. It is given to us AB is equal to AC. And when two sides of triangle are equal, then opposite angles are also equal. It is a property of isosceles triangle. तो AB और AC के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है बेटा? B and C. कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल B and एंगल C. तो they will be also equal. We will mark it as equation first and we will keep it because it will help us. We need it to solve the sum. Now we want to prove that triangle ABD and triangle ECF are similar. So we will start now in triangle ABD and triangle ECF. Angle B is equal to angle C. Proved in equation first. देखो यहाँ पे हमको ज़रूरत है angle B is equal to angle C की. This we have already proved. Angle D is equal to F. It will be 90 degree. दोनों 90 degree के angle है. Perpendicular is given to us. We can see in the statement. AD is perpendicular on BC. And EF is perpendicular on AC. So angle D और angle F कितने के हो गए बेटा? 90 degree. The two angles are equal. So by angle similarity, triangles will be similar. That is triangle ABD is similar to triangle ECF. Clear? Easy है question. Next देखो question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Figure is also not given, that also we have to make. D is a point on the side BC of a triangle ABC. एक triangle ABC, D is a point on the side BC. So you can see I have taken here ABC triangle, D is one point on BC. Next he has said such that angle ADC is equal to angle BAC. Angle ADC, so we have to join AD. So in this way we will get the figure angle ADC is equal to angle BAC. Then prove that CA square is equal to CBCD. So some students might get confused in it. Okay, how we can prove this type of situation? CA square is equal to CBCD. है ना, नया सा आ गया. But we not have to get hyper. बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो होता है CA square means स्केयर का मतलब है दो बार सी है. इट इज सी ए इंटू सी ए एंड सी ए दो बार कैसे आएगी? हाउ सी ए विल कम टू टाइम्स? सी फ्रॉम द फिगर वन टाइम सी ए कैन कम इन स्मॉल ट्राइंगल ए डी सी एंड वन टाइम सी ए कैन कम इन द बिग वन ट्राइंगल ए बी सी. इन दिस वे वी हैव टू डील विद दिस सम. सी ए स्केयर चाहिए मतलब दो बार सी ए चाहिए. टू टाइम्स सी ए इज हाउ वी कैन टेक वन. वी हैव टू टेक ट्राइंगल ए डी सी, तब आ जाएगी सी ए साइड. एंड वन वी हैव टू टेक ट्राइंगल ए बी सी, पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, देन इट विल कम ए सी या सी ए. ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया वी नीड दिस टू ट्राइंगल्स. वन इज ए डी सी एंड वन इज बी ए सी. इनको सिमिलर प्रूव करना है. ठीक है, तो सिमिलर देखो कैसे प्रूव करेंगे. दैट्स वाई ही हैज़ गिवन, देखो ही हैज़ गिवन अस एंगल ए डी सी. इट इज़ एंगल ऑफ स्मॉलर वन ट्राइंगल इक्वल टू द एंगल बी ए सी विच इज़ एंगल ऑफ अ बिग वन ट्राइंगल. दे रखे है ना, तो इट मीन्स दैट्स वाई ही हैज़ गिवन, तभी तो उसने दिए. सो दिस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. डायरेक्ट वी विल यूज बिकॉज इट इज़ गिवन. एंड एंगल सी विल बी कॉमन. देखो एंगल सी है जो दिस वन राइट साइड पे, जो राइट साइड पे एंगल है एंगल सी, इट इज़ कॉमन इन बोथ. इट इज़ एंगल ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल ए डी सी ऑल्सो. इट इज़ ऑल्सो एंगल ऑफ बी ए सी. ठीक है, तो एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो गया बेटा? ट्राइंगल सिमिलर हो गए. कौन कौन से ट्राइंगल? ए डी सी एंड बी ए सी सिमिलर हो गए. नाउ वी नीड सी ए. टू टाइम्स सी ए वी नीड. फर्स्ट ट्राइंगल में से सी ए कह लो या ए सी कह लो. तो सी हाउ वी कैन टेक ए सी. मैंने लिया ए सी, बीच में डी छोड़ दिया
तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, बी सी, ए वी विल लीव, बी सी, ए सी के नीचे आ गया बी सी इक्वल। नाउ अगेन वी नीड ए सी, अब दूसरे ट्राइंगल में सी ए सी आएगा एंड वी कैन सी ए सी इज ऑन बैक साइड, बैक वाले 2 डिजिट हैं, तो हेयर ऑल्सो वी हैव टू टेक बैक 2 डिजिट्स, दैट इज डी सी, तभी तो बनेंगे ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेने हैं, डी सी उधर से आ जाएगा ए सी, तो वी गेट ए सी अपॉन बी सी इक्वल डी सी अपॉन ए सी। रीजन क्या हो जाएगा, सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी इंटू ए सी इक्वल डी सी इंटू बी सी, ए सी इंटू ए सी का स्केयर इक्वल डी सी इंटू बी सी, ए सी का स्केयर कह दो या सी ए का स्केयर कह दो, दैट इज सेम थिंग, इक्वल टू आ गया बेटा सी बी इंटू सी, दैट वी हैव टू प्रूव ओनली। ठीक है, हो गया ना इजीली। अगर पहले ही सोचने बैठ गए कि हाउ सी ए स्केयर और सी बी सी डी, तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड एंड रॉन्ग हो जाएगा सब। ठीक है, इन द सिंपल वे वी हैव टू गो, गिवन टू प्रूव यू हैव टू राइट, जो चीज़ गिवन है वो देखना है कि उसका कैसे यूज़ करना है, एंड देन अपने आप हो जाते हैं सब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट से शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, सेम टाइम टावर कास्ट से शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अ पोल इज देयर whose height is 6 meter, it is making shadow of 4 meter on the ground, and on the same time एक टावर है whose shadow is for 28 meter, then we have to tell what is the height of the tower। उसी सेम टाइम पे अगर उसकी शेडो बन रही है 28 मीटर की, तो उसकी एक्चुअली हाइट क्या है। तो हेयर ऑल्सो वी हैव टू डो, देखो ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स हैं, वी हैव टू राइट ऑल्सो लेट ए बी इज द पोल, वर्टिकल पोल है ऑफ हाइट 6 मीटर एंड बी सी इज इट शेडो 4 मीटर की, ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। सिमिलरली लेट द हाइट ऑफ द टावर इज, लेट द हाइट ऑफ द टावर पी क्यू इज एच मीटर, शेडो 28 मीटर दे रहे, इसका भी एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, 2 साइड्स भी नो मतलब एक फाइंड करनी है, वैसे 2 है साइड्स। तो देखो साइड्स वी कैन मेक रिलेशन विद ईच अदर ओनली व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। साइड्स का हम रिलेशन आपस में तभी बना सकते हैं व्हेन ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। तो इट मीन्स फर्स्टली वी नीड टू डू ट्राइंगल सिमिलर। वो देखो कैसे करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, 2 ट्राइंगल्स आर विद अस, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कंडीशन पोल एंड टावर आर ऑफ, मतलब दे आर स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, दे आर प्रॉपरली स्ट्रेट, सो दे विल मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, वैसे सम सिचुएशन कैन बी देयर दैट पोल एंड टावर आर नॉट स्ट्रेट, बट स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से दे आर स्ट्रेट, सो वी हैव टू टेक एंगल 90 डिग्री। एक हो गया 90 डिग्री का एंगल। सेकेंडली एंगल सी एंड एंगल आर, इट विल बी ऑल्सो इक्वल, बिकॉज देखो इन क्वेश्चन यू कैन सी ही हैज़ यूज द वर्ड ऑन द सेम टाइम, मतलब सन की जो पोजीशन है रिस्पेक्टिव टू दिस बोथ 2 थिंग्स पोल एंड टावर, इट इज ऑन द सेम पोजीशन रिस्पेक्टिवली, इट इज सेम फॉर बोथ, सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस टॉपिक हैज नॉट केम हियर इन योर सिलेबस येट, इट विल कम इन नेक्स्ट चैप्टर्स, बट रीजन तुमने याद रखना, इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो 2 एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन राइट दैट बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा, सिमिलर, दैट इज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR। नाउ इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो देखो यू कैन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में आ गई, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। वैल्यूज पुट कर देंगे, हुज वैल्यूज वी नो, 6 अपॉन H इक्वल 4 अपॉन 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करके H वैल्यू आ गई 42, एंड H हमने किसको लेट किया था, हाइट ऑफ द टावर, so that means height of tower is 42 meters. Clear everybody? So in this way up to 16 question you have to complete this. You will complete this exercise 6.3, and in next class we will start next topic, area of similar triangle, which is also very important topic from examination point. But firstly you have to complete this exercise 6.3. Thank you.